ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس دن پگڈنڈی بھی بہت سنسان تھی۔ تیز ہوا کے بگولے مٹی کو ساتھ لیے پھرتے تھے۔ آسمان سرخ ہو رہا تھا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ جب کوئی بے گناہ قتل ہو تو سرخ آندھی چلتی ہے۔ اس کے دل پر بھی عجیب وحشت طاری ہوئی تھی۔ وہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس کے جذبات کا، اس کی خواہشات کا، اس کے احساسات کا قتل ہوا ہے، اور اسے بہت زیادہ گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چھت پر چلا آیا اور سوچنے لگا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ اس کی بیوی نے اسے بہت ہی مجبور کر دیا تھا، لیکن اس کے دل میں اٹھتے ہوئے خدشے اسے اور پریشان کر رہے تھے۔ آخرکار بہت دیر سوچنے کے بعد وہ ایک فیصلے پر پہنچا اور سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ گیا اور اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے تمہارا فیصلہ منظور ہے۔ اس کی بیوی نے جب یہ سنا تو خوشی سے جھوم اٹھی اور میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی کہ کیا اس کی زندگی میں میری اتنی ہی اہمیت ہے کہ اس کو میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے تو بس پیسوں سے ہی محبت ہے۔ میرا نام جاوید ہے۔ میں اپنے والدین کا ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے والدین بہت ہی غریب تھے، لیکن وہ مجھ سے بہت ہی بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اپنے برے حالات کے باوجود بھی وہ میری ہر خواہش کو پورے کرنے کی کوشش کرتے۔ میرے والد گاؤں کے چودھری کے ڈیری فارم پر کام کرتے تھے۔ وہاں پر جانوروں کی دیکھ بھال اور دودھ کو مارکیٹ تک پہنچانا انہی کی ذمہ داری تھی، اور اس کے حساب کتاب کو وہ لکھتے تھے۔ میں بھی اکثر ان کے پاس ان کی مدد کے لیے چلا جاتا۔ میں نے گاؤں میں ہی میٹرک تک تعلیم حاصل کی، لیکن میرے والدین اور مجھ میں اتنی سکت نہ تھی کہ میں اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر کا رخ کر سکتا۔ اسی لیے میں نے گاؤں میں ہی اپنی روزگار کا ذریعہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میرے والد نے مجھے کہا کہ اگر تم نے گاؤں میں یہ کام کرنا ہے تو تم کیوں نہ میرے ساتھ ہی ڈیری فارم چلے جایا کرو، اس طرح ہم باپ بیٹا مل کر یہ کام کر لیا کریں گے۔ مجھے بھی ان کا یہ فیصلہ اچھا لگا۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ انہوں نے کہا کہ میں چودھری سے بات کر کے تمہیں بتا دوں گا۔ اس طرح میرے باپ نے ان سے بات کی۔ چودھری کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہوا۔ وہ تو خوش ہوا کہ اس طرح دونوں مل کر ڈیری فارم کا اچھے طریقے سے خیال رکھ سکیں گے، اور میں اپنے باپ کے ساتھ ڈیری فارم جانا شروع ہو چکا تھا۔ ڈیری فارم گاؤں کے ایک طرف کھیتوں کے درمیان میں ہی بنایا گیا تھا۔ ڈیری فارم میں اعلیٰ نسل کے جانور منگوائے گئے تھے۔ شروع میں مجھے یہ کام کرنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن میرے باپ کی مدد کی وجہ سے مجھے یہ کام سمجھنے میں مدد مل رہی تھی۔ ایک دن چودھری نے ڈیری فارم کا چکر لگایا تو اس نے کہا کہ تم دونوں باپ بیٹے میں سے کوئی ایک شخص رات کو فارم پر سو جایا کرے، کیونکہ ڈیری فارم کا چوکیدار نوکری چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اسی لیے کسی اور چوکیدار کا انتظام کرنے کے لیے وقت درکار تھا۔ اسی لیے جب تک کسی اور چوکیدار کا انتظام نہیں ہو جاتا تو میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میں ڈیری فارم میں سو جایا کروں گا، کیونکہ سارا دن کے کام کرنے کے بعد میرا باپ بہت تھکا ہوا ہوتا تھا۔ مجھے ان کا یہاں سونا مناسب نہ لگا، اسی لیے میں نے اپنا رات کے سونے کا پورا انتظام کر کے ڈیری فارم آ گیا۔ میں نے اپنی چارپائی گیٹ کے پاس ہی بچھائی تھی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میری چارپائی کے پاس کھڑا ہے۔ میں نے ایک دم دائیں طرف دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا۔ میں نے کروٹ بدل کر اپنا چہرہ گیٹ کی طرف کر لیا، لیکن پھر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دم سے کتے کے بھونکنے کی آواز آنا شروع ہو گئی، کیونکہ فارم میں حفاظت کے لیے کتا بھی رکھا گیا تھا۔ میں اس کے پاس گیا تو وہ مجھے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ میں کچھ دیر دائیں بائیں چکر لگاتا رہا تاکہ حالات کا جائزہ لے سکوں۔ جب میں نے ہر طرف سے تسلی کر لی تو دوبارہ آ کر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ مجھے ایسا کیوں محسوس ہوا ہے، لیکن میں نے اپنے اوپر مختلف دعائیں پڑھ کر پھونک ماری اور اپنے اوپر چادر اوڑھ کر سو گیا۔ اس طرح رات گزر گئی اور صبح سویرے جب میرا باپ ڈیری فارم آیا تو میں کچھ دیر کے لیے گھر کپڑے بدلنے اور ناشتہ کرنے کے لیے چلا گیا تاکہ کچھ دیر بعد دوبارہ آ سکوں۔ میری ماں کی ٹانگوں میں بہت سا شدید درد رہتا تھا، جسے چلنے پھرنے میں بھی بہت ہی مشکل ہوتی تھی۔ ان سے گھر کے کام کاج نہیں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے بہت پریشانی ہوتی تھی۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا تھا کہ ان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹا سکوں،
ہم نے کئی دفعہ گاؤں کے بڑے اسپتال میں ڈاکٹر سے علاج بھی کروایا، لیکن جب تک وہ دوائی کھاتی رہتی تب تک وہ چلنے پھرنے میں آسانی رہتی۔ جیسے ہی دوائی کھانا بند کر دیتی تو انہیں پھر سے وہی مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا۔ میں نے باپ سے اس مسئلے کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس کا یہی ایک حل ہے کہ تمہاری شادی کر دی جائے تاکہ گھر کے کام کاج میں ان کی مدد ہو سکے۔ میں بھی اپنی ماں کی حالت دیکھ کر ان کی بات مان گیا۔ اس طرح میرے باپ نے اپنے بھائی سے رشتے کے لیے بات کی تو وہ بھی اس بات پر راضی ہو گئے۔ اس طرح میرا رشتہ میرے چچا کی بیٹی کے ساتھ طے ہو گیا۔ میرے چچا کی بیٹی نے بھی میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، لیکن وہ بہت ہی شوخ اور چنچل قسم کی لڑکی تھی۔ میں نے جب اپنی ماں سے اس کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ شادی سے پہلے لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، شادی کے بعد جب گھر کی ذمہ داری پڑے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ میرے چچا نے کہا کہ ابھی شادی کے لیے انہیں کچھ مہینے رکنا پڑے گا کیونکہ جہیز تیار کرنے کے لیے وقت لگے گا، لیکن میرے باپ نے کہا کہ ہمیں سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ویسے ہی نکاح کر دو۔ اسی طرح سادگی کے ساتھ میرا نکاح میرے چچا کی بیٹی سے ہو گیا، اور میں جب رات کو اپنی بیوی کے کمرے میں گیا تو مجھے اس کا رویہ کچھ اکھڑا اکھڑا سا لگا۔ میں نے اسے اس کے رویے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے گھر کے کام کرنے کے لیے لے کر آئے ہو تاکہ میں تمہاری بیمار ماں کی خدمت کر سکوں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اگر تم گھر پر کام یا میری ماں کا خیال رکھ لو گی تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہر گھر کی بہو بیٹی اپنے بوڑھوں کی خدمت اور خیال رکھتی ہے۔ وہ میری بات سن کر خاموش ہو گئی۔ نکاح کے کچھ دن تک میری ماں نے اسے کسی کام کو ہاتھ لگانے نہ دیا کہ نئی نویلی دلہن ہے، آتے ساتھ ہی کام کی گھر کے کام پر لگا دیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے۔ اسی طرح ہم نے بھی ان کی بات مان لی، اور میں نے بھی کچھ دنوں کی چھٹیوں کے بعد ڈیری فارم میں جانا شروع کر دیا۔ ابھی تک ادھر چوکیدار کا کوئی بھی انتظام نہیں ہو سکا تھا، مجھے ابھی کچھ دنوں کے لیے ادھر ہی سونا تھا، اور جب میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ آج رات میں گھر نہیں سوں گا تو اس کی وجہ سے میری بیوی کا موڈ خراب ہو گیا۔ میں رات کو ڈیری فارم چلا گیا اور سارے دروازے چیک کر کے حفاظتی انتظامات دے کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ ابھی میں لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے کسی چیز کی چھن چھن کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا، لیکن یہ آواز آہستہ آہستہ تیز ہونا شروع ہو گئی۔ میں غور کر رہا تھا کہ آواز کس سمت سے آ رہی ہے، لیکن میں صحیح سمت کا تعین نہیں کر سکا۔ جہاں سب جانور بندھے ہوئے تھے وہاں پہ لائٹ کبھی جل رہی تھی کبھی بجھ رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ خوف سے مجھے پسینے آنا شروع ہو گئے اور میرا جسم کانپنے لگا، اور میں نے دور ایک سرخ روشنی نکلتی ہوئی دیکھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آگ لگی ہوئی ہے۔ میں نے اونچی اونچی بولنا شروع کر دیا کہ کوئی میری مدد کے لیے آئے، اور میرے ذہن میں تمام چیزیں ایک دم سے گھومنا شروع ہو گئیں۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں علم کہ میں کتنی دیر بے ہوش رہا، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے ماتھے پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ میں اپنی آنکھوں کو کھولنے کی بہت کوشش کر رہا تھا، لیکن میری آنکھیں کھل ہی نہیں رہی تھیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مسلسل میرے پاس بیٹھا ہوا ہے اور مجھے آوازیں دے رہا ہے۔ میں نے بہت کوشش کر کے اپنی آنکھیں کھولی تو جیسے میں نے آنکھیں کھولی تو سورج کی ہلکی ہلکی روشنی نکل رہی تھی۔ میں نے اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائی، لیکن میرے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور مجھے اپنے ماتھے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھا اور سوچنے لگا کہ ابھی مجھے کون آوازیں دے رہا تھا۔ میں نے پہلے اپنے باپ کے آنے کے بعد گھر جاتا تھا، ابھی ان کے آنے میں کچھ ٹائم باقی تھا۔ میں نے ان کا انتظار نہیں کیا اور میں نے فوراً ہی گھر کی طرف دوڑ لگائی۔ جیسے جیسے میں گھر جا رہا تھا مجھے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو میں ایک دم گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کتنی دیر کے بعد ہوش آیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو گھر کے سارے افراد میرے ارد گرد جمع تھے۔ میرا باپ اور میری ماں بہت ہی پریشان تھے، اور میری بیوی بھی پریشانی کی عالم میں کھڑی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو بے ہوش ہو گئے تھے۔ ہم تمہیں اٹھا کر لے کر آئے اور تمہارا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ میں نے انہیں رات والا تمام واقعہ بتایا تو وہ بھی سن کر پریشان ہو گئے۔ میرے باپ نے کہا کہ یہ تمہارا وہم ہے، میں تو اتنے عرصے سے ادھر ہی کام کر رہا ہوں،
इस तरह का कभी कोई वाकया पेश नहीं आया। आज के बाद तुम रात को नहीं जाओगे। जब तक चौकीदार का इंतज़ाम नहीं हो जाता मैं ही उधर रहूँगा। मैंने अपने बाप की बात सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली। इसी तरह मैं कई दिन बुखार में तपता रहा। मेरा बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे जहन में और दिल में एक खौफ पैदा हो चुका था। मैंने सोचा कि अब मैं उधर काम के लिए नहीं जाऊंगा। मैंने अपने बाप से बात की कि आप चौधरी से माजरत कर लें। मेरे बाप ने पता नहीं चौधरी को किस तरह राज़ी किया, लेकिन अब मैं अपने रोज़गार के लिए काम की तलाश कर रहा था। काफ़ी दफ़ा मैं शहर भी गया। मेरी तालीम भी इतनी कम थी कि मुझे कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। या तो मुझे किसी चौकीदार की या किसी मज़दूर की ही नौकरी मिल रही थी, और ये मैं नौकरी करने के लिए राज़ी ना था। इस तरह मैं रोज़ाना ही चक्कर लगाकर घर वापस आ जाता। मेरी बीवी भी मुझसे पैसे मांगने लगी कि उसको भी जेब खर्च की ज़रूरत है, कि उसकी सारी जिम्मेदारी का बोझ भी मेरे कंधों पर था। मैं अपने बाप से भी इस चीज़ का मुतालबा नहीं कर सकता था कि वो पहले ही घर का खर्चा चला रहे हैं। मैं दिन रात परेशान रहने लगा। एक दिन मैं परेशानी में बैठा छत पर बैठा हुआ था कि आगे मैं क्या करूं, कि एकदम से मेरी बीवी भागती हुई छत पर आई और कहने लगी कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें काम नहीं मिला। ये तुम्हारी जेब में इतने पैसे कहाँ से आए हैं? मैं हैरान हो गया कि कौन से पैसे। मैंने उससे पूछा तो कहने लगी कि तुम्हारे कपड़े नीचे लटक रहे थे। मैं धोने के लिए कपड़े पकड़े तो उसमें से ये पैसे निकले हैं। मैंने उन पैसों की तरफ देखा तो वो हज़ार हज़ार के कई नोट थे। मैं हैरान हो गया कि मेरी जेब में इतने पैसे कहाँ से आए हैं। मैंने उससे कहा कि मैं इन पैसों के बारे में कुछ नहीं जानता, तो वो कहने लगी कि तुम्हारी जेब में ही पैसे हैं। तो तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? इन पैसों पे सबसे पहले मेरा हक है। उसने वो पैसे पकड़कर अपने पास रख लिए, लेकिन मुझे तो इस चीज़ की परेशानी थी कि ये पैसे मेरी जेब में कहाँ से आए हैं। मुझे कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था कि मैंने तो किसी दोस्त से भी नहीं मांगे, ना ही मैं किसी से मिला हूँ, और कोई अजनबी कैसे मेरी जेब में ऐसे पैसे डाल सकता है। मैं ये सोचते हुए नीचे आया तो देखा कि मेरी बीवी पैसे अपने पर्स में रख रही थी और मुझे कह रही थी कि इससे मैं अपने कपड़े खरीदूंगी। मेरी ज़रूरत की बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं। मैंने सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि अगर मैं उसे इस चीज़ से मना करता, उसने कौन सा मना हो जाना था या मेरी बात मान लेनी थी। इस तरह अगले दिन वो अपने माँ बाप के घर गई ताकि अपनी बहन के साथ बाज़ार जा सके। इस तरह वो जी भर कर शॉपिंग करके आई और कुछ घर की ज़रूरत की चीज़ें भी लेकर आई। मेरी अम्मा ने मुझसे पूछा कि ये पैसे उसके पास कहाँ से आए हैं, लेकिन मैंने उनसे इस बात का कोई तस्करा ना किया। मैंने उनसे सिर्फ इतना ही कहा कि उसने अपने कोई पैसे जमा किए हुए थे जिसकी ये शॉपिंग करके आई है। मेरे जहन में इन सोचों के अलावा अपने रोज़गार की भी परेशानी लगी हुई थी। इसी तरह काफ़ी दिन गुजर गए। एक सबसे अजीब ये बात होने लगी कि मेरी बेबी जिस चीज़ की भी फरमाइश करती, कुछ दिन बाद या कुछ घंटों बाद वो चीज़ उसके सामने पड़ी होती। वो मुझसे कहती कि ये तुम मेरे लिए लेकर आए हो, लेकिन मेरे पास कोई भी जवाब नहीं होता था कि मैं खुद भी हैरान था ये सारी फरमाइशें कौन पूरी कर रहा है। आखिरकार मैंने थक हार कर दोबारा से डेयरी फार्म जाना शुरू कर दिया, क्योंकि घर फारिग बैठकर गुजारा नहीं हो सकता था। मैं जैसे ही डेयरी फार्म जाना शुरू किया तो मुझे यही महसूस होता कि मेरे आसपास कोई ना कोई मौजूद है, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं देता। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे ही आसपास मौजूद रहती है, या उसका डेयरी फार्म में उसका ठिकाना है। मैंने आज अपने अंदर हौसला पैदा करते हुए उससे डायरेक्ट बात करने का फ़ैसला किया। मैंने पूरे चाको चौबंद होकर अपनी चारपाई पर बैठ गया और ऐसी हरकत की तरफ गौर करने लगा कि कुछ गैर मामूली हो, लेकिन काफ़ी वक्त गुजर गया, ऐसा कुछ भी न हुआ और मैं सोने के लिए लेट गया। अभी मैं मुकम्मल तौर पर नींद में नहीं डूबा था कि एकदम से मुझे किसी के रोने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। मैं फ़ौरन उठा तो देखा कि गेट के एक तरफ कोई घुटनों पर सर देकर बैठा हुआ है, और वो दिखने से ही कोई लड़की लग रही थी। मैंने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए और उसके पास जाकर खड़ा हो गया और मैं उससे पूछने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन उसने अपना सर न उठाया। मैंने उसको 2-3 दफ़ा आवाज़ दी, लेकिन वो वैसे ही बैठी रही। मैंने उसको बुलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही मैंने अपना हाथ बढ़ाया कि उसने एकदम से अपना सर उठाया। मैं एकदम से खौफजदा होकर चंद कदम पीछे हुआ और देखा कि वो एक निहायत ही खूबसूरत लड़की थी। उसका रंग गोरा और उसके नैन नक्श तीखे और होंठ बिल्कुल बारीक थे, लेकिन मैं उसकी आंखों की तरफ ना देख सका क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। जब उसने अपनी आंखें एकदम से खोली
तो उनमें से निकलती हुई रोशनी को देखकर मैं डर गया और एक तरफ होकर खड़ा हो गया। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों का रंग बदलना शुरू हो गया और एकदम से उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं। उसने कहना शुरू किया कि मैं एक जिन ज़ादी हूँ। मैं अपने इलाके से कुछ सहेलियों के साथ इधर आई थी ताकि तुम लोगों की दुनिया को देख सकूं। लेकिन जब हम वापस जाने लगे तो हमने कुछ देर इस जगह पर क़याम किया। जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगे। मैं तब से ही तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मैंने ही तुम्हारी जेब में पैसे डाले थे क्योंकि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हें कोई भी रोज़गार नहीं मिल रहा था। इसी वजह से मैं रो रही थी। मैं चाहती थी कि तुम दोबारा इसी डेयरी फार्म में आकर काम शुरू करो। जब मैंने उसकी बात सुनी तो मैं हैरान और परेशान खड़ा रह गया कि जिन ज़ात लोगों में ऐसे भी लोग मौजूद होते हैं जो किसी से हमदर्दी और अच्छा सलूक कर सकें। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे दोस्ती एक ही शर्त पर करूँगा कि तुम मेरे घर वालों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाओगी। उसने कहा कि वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। उसकी किसी को नुकसान पहुँचाने वाली आदत ही नहीं है। मैं उसकी बात सुनकर मुतमईन हो गया। इस तरह कुछ देर वो बैठी और मुझसे बातें करती रही, फिर वो गायब हो गई। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था कि मैं एक जिन ज़ादी से इतनी देर बातें करता रहा हूँ। इस तरह काफ़ी दिन गुजर गए। मेरी बीवी फिर से मुझसे पैसों का मुतालबा करने लगी। मैं सोच रहा था कि उसकी ख्वाहिशात दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। मैंने उसको अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर दिए तो वो हैरान हुई और कहने लगी कि उस दिन तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारी जेब में पैसे कहाँ से आए हैं और आज मुझे खुद दे रहे हो। आज तुम ये पैसे कहाँ से लेकर आए हो? मैंने उससे कहा कि ये मैंने अपनी तनख्वाह से जमा किए हुए थे। इसी तरह मैंने ये कहकर बात टाल दी क्योंकि वो पैसे मुझे जिनज़ादी देती थी, क्योंकि उसे पता था कि जब भी मेरी बीवी कोई भी फरमाइश करती है तो मुझे परेशानी होती है। इसी तरह अक्सर ये होने लगा कि मेरी बीवी जब भी पैसों की फरमाइश करती या किसी भी चीज़ की करती तो मैं फ़ौरन पूरी कर देता और वो ये हैरान हो जाती कि मैं इतनी सी तनख्वाह में कैसे ये सब पूरा कर रहा हूँ। मैं रोज़ाना ही डेयरी फार्म में सोने लगा। एक दिन वो मुझे कहने लगी कि तुम तो इतने शौक़ से डेयरी फार्म जाने लगे हो जैसे किसी से मुलाकात करने जाते हो। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गया तो उसने कहा कि मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। मैंने उससे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। गांव के चौधरी ने चौकीदार का इंतज़ाम कर दिया था। अब मेरा रात को डेयरी फार्म में सोने का बहाना भी ख़त्म हो चुका था। इस दौरान मेरी बीवी के मामू की बेटी की शादी दूसरे गांव में आ गई तो उसने ज़िद पकड़ ली कि मैं भी उसके साथ चलूं। मैंने उसे इनकार करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो ना मानी। मेरे बाप के समझाने से मैं उधर उसके साथ चला गया। मैं सोच रहा था कि जिनज़ादी मेरा इंतज़ार कर रही होगी कि मैं उससे मिलने क्यों नहीं आया, लेकिन मुझे ये भी पता था कि उसे इल्म होगा कि मैं इस वक्त शादी पर जा रहा हूँ। शादी में रात को मेहंदी के फंक्शन में जब सब लड़कियाँ मेहंदी के थाल उठाए आ रही थीं, मैंने देखा कि उन्हें लड़कियों में से एक लड़की जिनज़ादी थी। मैं देखकर फ़ौरन घबरा गया कि दूसरी लड़कियाँ क्या सोचेंगी या मेरी बीवी क्या सोचेगी, लेकिन वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने दाएं बाएं लोगों की तरफ देखा कि कोई उसकी तरफ और तो नहीं कर रहा, लेकिन हर कोई अपने आप में ही मगन था। कुछ देर बाद खाने की बारी आई तो सब खाना खाने में मसरूफ़ हो गए और खाना खाने के बाद रस्म शुरू होनी थी। मैं एक तरफ होकर बैठ गया क्योंकि लड़कियों की रस्म में मेरा क्या काम था। मैं दाएं बाएं देख रहा था कि जैसे ही मैंने बाईं तरफ देखा तो वो मुझे मेरे साथ ही बैठी हुई नज़र आई। मैं एकदम घबरा गया। मैंने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो वो क्या सोचेंगे? उसने कहा कि तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ किसी को भी नज़र नहीं आ रही हूँ। मैं हैरान हुआ कि तुम लड़कियों के साथ मेहंदी के थाल उठाए आ रही थी। तो वो कहने लगी कि मैं सिर्फ तुम्हें ही नज़र आ रही हूँ, बाकी मैं किसी को भी नज़र नहीं आ रही। वो बहुत खुश हो रही थी कि मैंने आज इंसानों की शादी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह वो मुझसे बातें करती रही। मैं उसे किसी बात का जवाब दे रहा था कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरी बीवी मशकूक नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि तुम किससे बातें कर रहे हो? मैं एकदम घबरा गया। मैंने उससे कहा कि मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। उसने कहा कि मैंने अभी तुम्हें किसी से बात करते हुए देखा है। वो मुझसे इस बात का इसरार ही करती रही तो मैंने उसे कहा कि हम घर जाकर इस मौजू पर बात करेंगे।
अभी तो फ़िलहाल तुम अपने मामू की बेटी की शादी को एंजॉय करो। फ़िलहाल तो वो मेरी बात मान गई, लेकिन मुझे उसके तेवर अच्छे नहीं लग रहे थे कि वो मुझसे अब ये जान कर ही रहेगी कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। इसी तरह मैं अपने दिमाग से कोई बहाना सोचने लगा। हम वहाँ 3 दिन रहे। तीसरे दिन जब वापस आने लगे तो हमें रास्ते में कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही थी और शाम होती जा रही थी, क्योंकि शाम के बाद वहाँ पर रास्ता महफूज ना होता था। इसीलिए मेरी बीवी मुझे मुसलसल ये कह रही थी कि हम मामू के घर वापस चलते हैं, लेकिन मैं वापस जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं इतने दिनों से घर से बाहर था। मुझे अपने माँ बाप की फ़िक्र हो रही थी। मैंने कहा कि नहीं, गाड़ी का इंतज़ार कर लेते हैं। हम काफ़ी देर गाड़ी का इंतज़ार करते रहे, लेकिन वहाँ कोई भी बस ना आई। इतनी देर में हम वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि हमें दूर से 3-4 लोग अपनी तरफ चलते हुए नजर आए, जिन्होंने अपने चेहरे नकाबों से ढांपे हुए थे। हमें कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मेरी बीवी मुझे लान तान करने लगी कि मैं तुम्हें कब से कह रही थी कि यहाँ से निकलो, लेकिन तुम नहीं मान रहे थे। अब भुगतो। तो मैं भी अभी सूरत हाल देकर परेशान होने लगा। जैसे ही वो लोग हमारे पास आए, वो हमसे कहने लगे कि तुम लोगों के पास जो कुछ भी है वो निकाल दो। मैंने उनसे बहादुरी से जवाब दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया। जैसे ही उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया तो जिनजादी सामने आ गई। उसने उन आदमियों को खूब मारा, यहाँ तक कि वो लहू लहान होते हुए बेहोश हो गए। मेरी बीवी मुंह खोले ये सब कुछ देख रही थी कि एक लड़की होकर वो 4 मर्दों का कैसे मुकाबला कर रही है। जब वो डाकू बेहोश हो गए तो मैं जिनजादी के पास गया और उसका शुक्रिया अदा करने लगा। मेरी बीवी हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी और मेरे पास आई और कहने लगी कि ये कौन है, तुम इसे कैसे जानते हो। तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं तो अपनी बीवी के सामने ही इससे बात करना शुरू कर दी है। मैंने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात ना मानी और उसने कहा कि आज तो मैं सच जानकर ही रहूँगी। तुम पहले भी चुपके चुपके किसी से बातें करते हो। तो मैंने भी दिल में सोचा कि अब मज़ीद छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने उसे कहा कि ये एक जिनजादी है। जब उसने ये बात सुनी तो वो डर कर पीछे हो गई। मैंने उससे कहा कि तुम्हें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस तरह उसे कुछ हौसला हुआ। फिर मैंने उससे शुरू से लेकर आखिर तक तमाम बात बताई कि कैसे मेरी उससे मुलाकात हुई और मैं कैसे उसे जानता हूँ। और मैंने उसे ये भी बताया कि मेरी जेब में से जो पैसे निकलते थे वो ये जिनजादी ही रखती थी, और जो तुम मुंह से फरमाइशें निकालती थी वो जिनजादी ही तुम्हारी पूरी करती थी। वो ये बात सुनकर हैरान रह गई, लेकिन खामोश ही रही। कुछ देर बाद जिनजादी ने कहा कि ये जगह महफूज नहीं है, आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मैंने उससे कहा कि हमें कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही, तो उसने कहा कि आप दोनों अपनी आंखें बंद करें। हम दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने मेरी बीवी का हाथ पकड़ा और एकदम से गायब हो गई। और थोड़ी देर बाद उसने कहा कि आप लोग अपनी आंखें खोलें। तो हमने देखा कि हम अपने घर के सामने खड़े हैं। हम हैरान हो गए कि हमें सिर्फ चंद ही सेकंड या मिनट लगे थे कि यहाँ पहुँचते हुए। मैंने जिनजादी का शुक्रिया अदा किया और वो गायब हो गई और हम घर के अंदर दाखिल हो गए। रात को मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि आज तो बहुत ही अजीब वाक़या हुआ है। तुम इतने अरसे से एक जिनजादी से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन तुमने मुझे बताना तक गवारा नहीं किया। मैंने उससे कहा कि मैं खुद भी बहुत खौफजदा हो गया था, लेकिन बाद में उससे बात करने के बाद मुझे लगा कि वो ऐसी जिनजादी नहीं है जो लोगों को नुकसान पहुंचाए। इस तरह काफ़ी दिन गुजर गए और इन दिनों में 1 या 2 दफ़ा ही जिनजादी से मेरी मुलाकात हो सकी, क्योंकि दिन के वक्त मेरा बाप भी डेयरी फार्म में मेरे साथ होता था और रात को अब मेरा भी डेयरी फार्म में सोना मुमकिन नहीं था, क्योंकि चौकीदार का इंतज़ाम हो चुका था। इसीलिए ये 2 मुलाकातें हमारे घर की छत पर ही हुईं। एक दिन मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि इस तरह तो हमारे हालात और बेहतर हो जाएंगे अगर तुम जिनजादी से शादी कर लोगे। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत हैरानगी लगी कि ये कैसे मुमकिन है, और तुम पैसों के लालच में अपने शौहर को किसी जिनजादी के साथ शादी करवाना चाह रही हो। मैंने उसे डांट दिया, लेकिन वो अपनी ही बात पर कायम रही और कहने लगी कि खुद ही सोचो, अगर तुम जिनजादी से शादी कर लोगे तो वो तुम्हारी जेब में इतने पैसे रखती है। अगर तुम्हारा उससे रिश्ता बन जाएगा तो तुम तो दिनों में ही अमीर हो जाओगे। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए मैं कमरे से बाहर चला गया कि ये किस किस्म की बातें कर रही है। एक इंसान और जिनजादी की शादी कैसे हो सकती है, और वैसे भी मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, ये कैसे मुमकिन है। मैंने सोचा कि ये कुछ दिनों का फतूर है, खुद ही इसके दिमाग से निकल जाएगा। इस तरह काफ़ी दिन गुजर गए।
तो एक दिन मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि फिर क्या सोचा है, जो बात मैंने तुमसे कही थी। लेकिन वो बात तो मेरे दिमाग से निकल चुकी थी। मैंने उससे पूछा कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हारी और जिनजादी की शादी की बात कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि मैं तो उस बात को भुला भी चुका हूँ, तुम अभी तक इस बात को लेकर बैठी हो। उसने कहा कि मैं तो तुम्हारी शादी करवा कर ही रहूँगी। अगर तुम उस जिनजादी से शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी ये बात पूरे गांव में फैला दूंगी। फिर कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा और तुम लोगों को इस मोहल्ले में भी रहने की इजाज़त नहीं होगी कि तुम लोग जिनों से ताल्लुक़ रखते हो, इसीलिए कोई भी तुमसे बात करना पसंद नहीं करेगा। मैंने जब उसकी ये बात सुनी तो मैं खौफज़दा हो गया। मैं छत पर खड़ा दूर खेतों में देखते हुए सोच रहा था कि कैसे ये मेरे जज्बात और एहसासात के साथ खेल रही है। आसमान की तरफ देखा तो वो सुर्ख हो रहा था। मैंने सोचा कि जब किसी का कत्ल होता है तो तब सुर्ख आंधी चलती है। मैंने सोचा कि ये भी तो मेरे जज्बात और एहसासात का ही कत्ल है। इसी तरह मैंने बहुत सोच विचार के बाद उसकी ये बात मान ली, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए इज़्ज़त बिल्कुल भी ख़त्म हो गई कि वो एक बीवी होकर कैसे अपने शौहर के साथ ज़बरदस्ती कर सकती है। मैंने उससे कहा कि ये मेरा अकेले का फ़ैसला नहीं है, जब तक मैं उस जिनजादी से बात ना कर लूँ। मैंने उससे भी पूछा कि अगर मैं जिनजादी से शादी कर लेता हूँ तो क्या ये तुम बर्दाश्त कर लोगी? तो उसने कहा कि हाँ, मैं बर्दाश्त कर लूँगी। मैंने कहा कि इस बात का इल्म मेरे माँ बाप को नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि इस मामले में तुम बेफिक्र रहो। इस तरह मैंने जिनजादी से बात करने का फ़ैसला किया, लेकिन मैं उससे बात करते हुए हिचकिचा रहा था। मैंने रात को छत पर उस जिनजादी को बुलाया तो वो आ गई। मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। फिर मैंने उसे वो तमाम बात बताई तो वो भी मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। वो कहने लगी कि मैं तो तुम्हें कब से पसंद करती हूँ, लेकिन तुम शादीशुदा थे इसलिए मैंने तुमसे बात नहीं की। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे इलाके के लोग या तुम्हारे माँ बाप इस बात पर राज़ी हो जाएंगे? तो उसने कहा कि मेरे माँ बाप को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ और वैसे भी जानते हैं कि मैं तुमसे मिलती हूँ और तुम्हें पसंद करती हूँ। वो मुझे अपने साथ अपने इलाके में लेकर गई। उसने मुझे अपने वालिदैन से मिलवाया। उन्होंने मुझसे इंसानों के ही रूप में मुलाकात की। उनके इलाके में ही मेरा और जिनजादी का निकाह हो गया। उसने मुझे अपने इलाके की खूब सैर करवाई और अपने इलाके के खाने खिलाए। वो बहुत ही खुश नज़र आ रही थी। मैंने उसे कहा कि तुम खुद ब खुद मेरे पास नहीं आओगी, जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम तब ही आओगी। उसने मेरी बात मान ली। इस तरह वो मुझे मेरी दुनिया में वापस ले आई और मेरे लिए और मेरी बीवी के लिए बेशुमार तोहफे लेकर आई और गायब हो गई। मेरी बीवी कीमती तोहफे देखकर बहुत खुश हुई। इस तरह ये अक्सर होने लगा कि वो मेरी बीवी के लिए कुछ ना कुछ ले आती और मेरी बीवी पैसों में और तोहफों में ही खुश रहने लगी। मैं उसके लालच को देखकर आहें भरता था, लेकिन जिनजादी ने कभी भी मुझसे एतराज़ ना किया कि मैं उससे कम मुलाकात करता हूँ। बस वो चंद घंटे मेरे पास गुजारकर अपनी दुनिया में वापस चली जाती। वो बहुत ही नेक और हसास दिल रखने वाली जिनजादी थी। मुझे उसकी आदतें अच्छी लगने लगीं और मैं उसे पसंद करने लगा। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और मैं उसकी तरफ मुतवज्जो होता गया। मुझे उससे इश्क होने लगा। मैं उसकी मोहब्बत में डूबता गया। जब वो मेरे पास नहीं होती थी तो मुझे उसकी कमी बहुत महसूस होती। मेरा दिल करता कि वो हर वक्त मेरे पास मौजूद रहे। इस तरह जब भी मुझे उसकी ज़रूरत महसूस होती मैं उसे बुला लेता, क्योंकि अब तो मैं पूरा उस पर हक रखता था और यही बात मुझे हौसला दे रही थी। इसीलिए मैं उसे बिला झिझक बुला लेता। वो मुझे अपनी दुनिया में ले जाती। मेरे घर वालों को इस बात के बारे में कुछ इल्म नहीं था। आखिरकार मेरे माँ बाप ने मेरा इतने इतने घंटे गायब रहना नोट कर लिया। उन्होंने मेरी बीवी से सवाल जवाब किए, लेकिन मेरी बीवी ने कहा कि वो अपने किसी दोस्त के पास चला जाता है। मेरे माँ बाप ने कहा कि पहले तो हमारे बेटे के इतने दोस्त हैं ही नहीं, ये कौन से नए दोस्त बना लिए हैं जो उनके पास चला जाता है। लेकिन मेरी बीवी ने उन्हें कोई भी बहाना बनाकर खामोश करवा दिया और जब मैं अपने घर वापस आया तो मेरी बीवी ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। अब उसका मूड कुछ ख़राब लग रहा था। मैंने उस पर गौर न किया तो कहने लगी कि अब तुम ज़्यादा ही उस जिनजादी से मुलाकात करनी शुरू कर दी है। तो मैंने उससे कहा कि तुम खुद ही तो चाहती थी कि मैं उससे शादी कर लूँ। तो कहने लगी मैंने सिर्फ पैसों के लिए ही शादी का कहा था, तुम्हें उसे अपनी बीवी बनाने के लिए नहीं कहा था। मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। तो मैंने उससे कहा कि अब तुम्हें क्यों जलन महसूस हो रही है? अब तो तुम्हारे पास कोई पैसों की कमी नहीं है, तुम्हारे पास हर चीज़ मौजूद है। तो कहने लगी कि मुझे अब अपना शौहर वापस चाहिए।
तुम उस जिनज़ादी को तलाक दे दो। मैंने उससे कहा कि तुमने इसको खेल समझ रखा है। जब तुम चाहोगी मैं उससे शादी कर लूँ और जब तुम चाहो तो मैं उसे तलाक दे दूँ। मैं उसे हरगिज़ तलाक नहीं दूंगा। अपनी बीवी की बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैं उससे ये बात करके छत पर आ गया और मेरा दिल बेचैन हो गया क्योंकि उसने मुझे जिनज़ादी को तलाक देने का कहा था। तब से ही मुझे घबराहट होना शुरू हो गई क्योंकि अब मैं जिनज़ादी से इश्क करने लगा था। मैं उससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था तो उसे तलाक कैसे दे देता। इसी तरह मैं अब अपनी बीवी के सामने कम ही आता था ताकि वो मुझसे अजीबोगरीब मुतालबे ना करे जो मैं पूरे ना कर सकूं। उसने मेरे माँ बाप को भी मेरे खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया कि मैं पता नहीं इतने इतने घंटे का कहाँ गायब रहता हूँ। तो मैंने उसकी तरफ तंज भरी नज़रों से देखा कि ये तो मुझसे पूछ रही हो, तुमने ही ये रास्ते खोले हैं। एक दिन जिनज़ादी मुझे अपने साथ लेकर गई तो मैं 2 दिन उसी के इलाके में रहा क्योंकि मेरा वापस आने को दिल नहीं कर रहा था। उस जिनज़ादी ने मुझे कहा कि तुम कुछ परेशान लग रहे हो। तो मैंने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम किस वजह से परेशान हो। तो मैं ज़्यादा हैरान ना हुआ क्योंकि मुझे तो पता था कि वो एक जिनज़ादी है, उसको तो इल्म होगा ही। उसने कहा कि तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बेहतर फ़ैसला कर सकते हो। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो तुम मुझे छोड़ सकते हो। मैंने उसकी तरफ देखा कि उसका दिल कितना बड़ा है कि वो तमाम ताकत रखने के बावजूद भी इतने आराम से ये फ़ैसला कर रही है। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे इश्क करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अगर मैं छोड़ूंगा तो मैं उस अपनी लालची बीवी को छोड़ूंगा जिसने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी है। ना तो वो मेरे बूढ़े वालिदैन की खिदमत करती है, बस उसे पैसों से ही मोहब्बत है। मैंने अब अपनी बीवी से 2 टोक बात करने का फ़ैसला किया। जब मैं घर वापस आया तो घर में पहले ही एक महाज खुला हुआ था। उसने मेरे बारे में सब कुछ मेरे वालिदैन को बता दिया हुआ था। मेरे वालिदैन ने मुझसे सवाल किया कि हम ये तुम्हारे बारे में क्या सुन रहे हैं। तुमने अगर दूसरी शादी करनी ही थी तुम्हें इंसानों में कोई नज़र नहीं आया जो तुमने एक जिनज़ादी से ही शादी कर ली। मैंने अपने वालिदैन के खामोश होने का इंतज़ार करने लगा ताकि उनका गुस्सा कम हो जाए। जब वो बोल बोल कर थक गए तो मैंने उनसे खुलकर बात करने का इरादा किया। फिर मैं उन्हें एक एक हर्फ बताता जा रहा था तो वो जैसे जैसे बात सुन रहे थे हैरान हो रहे थे कि उनके इल्म में जो बात थी वो बिल्कुल ही उससे उलट थी। मैंने उनसे कहा कि आपकी इस लाडली बहू के लालच ही की वजह से उसने मेरी शादी उससे करवाई है। मैंने इसे बहुत मना करने की कोशिश की लेकिन ये अपनी ज़िद पर कायम रही। इसने मुझे धमकी भी दी थी कि मैं ये बात मोहल्ले वालों को बता दूंगी कि तुम एक जिनज़ादी से मुलाकात करते हो तो मोहल्ले वाले कोई भी तुम लोगों से बातचीत करना बंद कर देंगे और तुमसे खौफजदा हो जाएंगे और तुम्हें इस मोहल्ले से निकल जाने पर मजबूर कर देंगे। इसलिए मैं इसकी बातों में आ गया और जिनज़ादी से निकाह कर लिया और अब ये चाहती है कि मैं उसको तलाक दे दूं। लेकिन अब मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूं। अब मैं उस जिनज़ादी को हरगिज़ भी तलाक नहीं दूंगा। मेरे माँ बाप ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने अपनी बहू की तरफ देखा कि तुम झूठ बोल रही थी, यानी तुम ही इसे दूसरी शादी पर उकसाने वाली हो। मैंने गुस्से से अपनी पहली बीवी को कहा, अगर तुम मेरे साथ ऐसे रहना चाहती हो तो रहो, अगर तुम अपनी ज़िद पर कायम रही तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, लेकिन मैं उस जिनज़ादी को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। मेरी बीवी ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इस तरह मैंने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी और वो अपने घर चली गई। मैंने अपने वालिदैन से कहा कि हम कुछ दिनों में ये घर छोड़कर कहीं और घर ले लेंगे क्योंकि अब ये बात मेरे मोहल्ले में फैल जाएगी और ये तमाम बातें मैं नहीं सुन सकता। इसी तरह जिनज़ादी की मदद से हमने किसी और जगह पर नया घर ले लिया। अब जिनज़ादी कभी हमारे घर में रहती, कभी मैं उसके इलाके में चला जाता। वो मेरे वालिदैन के सामने भी इंसानों के ही रूप में आती। मेरे वालिदैन भी उससे बहुत ही प्यार और मोहब्बत से पेश आते हैं और उसे दुआएं देते हैं। मैं भी उसके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। जिनज़ादी एक बहुत ही नेक और शरीफ है। मैं उसे अपनी बीवी के रूप में देखकर खुशी से निहाल होता हूँ और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। मैंने अपना कारोबार भी शुरू कर दिया है ताकि मैं अपने घर और अपने वालिदैन का बोझ खुद बर्दाश्त कर सकूं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।